Hello friends, welcome to Manu Law Classes. Today is 5th September 2022 and today is also Teachers Day. Teachers Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was the first Vice President of India. He served 2 terms as the Vice President of India, and after that he became the second President of India. That is, after Dr. Rajendra Prasad, he became the second President of India. He was also the chairman of University Commission, okay, which saw the establishment of University Grant Commission, and today whatever structure we find in the university, that is related to his recommendation. So let's start with the news. So today we are going to focus too much on एक्सप्लेनर सीरीज एंड एडिटोरियल सीरीज, क्योंकि न्यूज़ आज वहाँ पे है हमारे काम का, हम वहाँ पे ज़्यादा आज फोकस करेंगे. उसके साथ साथ वी विल बी पिकिंग अप सम न्यूज़ बाइट्स फ्रॉम अदर सेक्शंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़. सो साइरस मिस्त्री हैज़ बीन किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट. सो साइरस मिस्त्री जो थे, ही वॉज द फॉर्मर टाटा सन्स चेयरमैन and he was traveling to Mumbai from Gujarat when his car hit a divider. So मुंबई के पास एक जगह है, पालघर करके डिस्ट्रिक्ट है वो, वहाँ पे टक्कर मारा एंड नाउ फाइनली ही इज नो मोर. नाउ द नेक्स्ट इज कमिंग टू द नेशनल पेज. So yeah, so on national page we are going to see that Hasina's visit to focus on water sharing. So here we are talking about Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, is going to visit Bangladesh. We also have an editorial related with it, Bangladesh, why Bangladesh is important for India. So we will be discussing that in agriculture. So in the editorial, so she is going to visit India from September 5 to 8, and over here we are going to focus on river water sharing, स्पेशली तीस्ता रिवर करके एक है, वहाँ पे फोकस होगा बहुत ज़्यादा. हमने पहले से ही जॉइंट रिवर कमीशन के बारे में पढ़ा था पिछली एडिशन में, पिछली वीडियोस में. जॉइंट रिवर कमीशन विच वाज एस्टेब्लिश्ड टू सॉल्व द वाटर इशू बिटवीन बोथ द कंट्रीज. तो इसमें जो तीस्ता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, और ये जो है वो इंडिया के लिए भी, मतलब वेस्ट बंगाल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बांग्लादेश के एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड इट हैज़ बीन अ बर्निंग इशू बिटवीन बोथ द कंट्रीज. So we are going to see that also. Along with that, we are also going to see that India and Bangladesh, they can join, they can sign an agreement called as Comprehensive Economic Partnership Agreement for expediting trade, for improving the trade share among both the countries. Okay, so the next is Rajnath Singh, who is our defense minister. He is going to begin 3-day visit to Mongolia. ठीक है, सो मंगोलिया इज गोइंग टू विजिट मंगोलिया फ्रॉम September 5 to 7. सो ही इज ऑल्सो स्केड्यूल्ड टू ट्रैवल टू जापान फॉर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग. 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का मतलब होता है कि दो कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे बोथ मीट एंड डिस्कस ऑन दिस पॉलिसीज. फाइन. तो यहाँ पे जो है, द फोकस विल बी ऑन डिफेंस. So India and Mongolia, they will be reviewing their bilateral defense cooperation, and they will be exploring new initiative to further strengthen their bilateral engagement. Now you can write me in the comment box the name of the exercise, a military exercise which is jointly held by India and Mongolia. Now India and Mongolia, so here the joint level group is very important. So they have formed joint working group, okay, where military to military exchange, high level visits, capacity building and training programs and bilateral exercise are reviewed. Now again about साइरस मिस्त्री. तो देखिए एलेट में कभी कभी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. सो हियर साइरस मिस्त्री, ही वाज अ सियन ऑफ शापुरजी पालुनजी ग्रुप, एंड ही वाज आल्सो द फॉर्मर हेड ऑफ टाटा ग्रुप. Okay, and he was there till 2016, who has died in a car accident. Also he was the son of construction tycoon Palonji Mistry, okay, and he was handpicked by Ratan Tata to succeed him, okay, in 2012. तो रतन टाटा जो थे वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे 2012 तक. उसके बाद 2012 से लेकर 2016 तक साइरस मिस्त्री was the
chairman of Tata Group. Now, about him, so he is a civil engineering graduate from London's Imperial College, and he has master of science. He had a master of science in management from London Business School. Okay, and he was only the this is important. He was only the second non-Tata ever to head the group. Now, certain achievements in his credit. So, among his achievements as the Tata Group's helm, he is credited with having overseen the turnaround of Tata Motors. Okay, and he was votary for existing all loss-making ventures. The next is about dark sky reserve. So this is from Science and Technology. So Science and Technology news. So this is very important, dark sky reserve. तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सबसे पहले अनाउंस किया है इंडिया में टू सेटअप डार्क स्काई रिजर्व एट हानले इन लद्दाख. एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है. किसने इनिशिएटिव लिया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने. क्या सेटअप करना है? इंडिया का पहला फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व. कहाँ पे? हैनले इन लद्दाख. हैनले इन लद्दाख की खासियत क्या है? इट इज़ अबाउट 4,500 मीटर्स अबाउट सी लेवल and it will host telescope and it is regarded as one of the world's most optimal sites for astronomical observations. फाइन. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि डार्क स्काई रिजर्व का मतलब क्या होता है. डार्क स्काई रिजर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह कि जहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी है प्लेस में कि वो इंश्योर करे कि एक पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड और रीजन इट हैज़ मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस. आर्टिफिशियल लाइट इंटरफेरेंस का मतलब जो नेचुरल लाइट्स नहीं है. फाइन. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है विच इज़ अ यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट डेजिग्नेट साइट्स एज इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेस, पार्क्स, सेंचुरीज एंड रिजर्व्स डिपेंडिंग ऑन इफ दे मीट देयर क्राइटेरिया. ओके, तो इंडिया में ये पहली बार होने जा रहा है. तो इंडिया में ये पॉसिबल कैसे हुआ? सो इफ यू विल सी दैट इन जून there was a three-way memorandum of understanding which was signed among the Union Territory of Ladakh, the Ladakh Autonomous Hill Development Council and Indian Institute of Astrophysics which is in Bangalore. Okay, so they launched this dark space reserve. Now see, अब देखिए ये जो सिचुएशन है डार्क स्काई रिजर्व इंडिया का, तो ये वेस्टर्न हिमालयाज में लोकेटेड है. ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड अटॉप माउंट सरस्वती इन नीलमखुल प्लेन इन हैनली वैली ऑफ चांगतांग which is a dry cold desert with sparse human population. Also over here is cloudless skies, low atmospheric water vapor, making it one of the best sites for astronomy. अब हैनले ऑब्जर्वेटरी में देखिए और कौन कौन से ऑब्जर्वेटरीज और कौन कौन से टेलीस्कोप्स हैं. तो यू विल सी हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप and Growth India. These are the prominent telescopes located at Hanle Observatory. The next is about nano urea. So the scientists, they are still remaining skeptical about how nano urea will benefit the crop. So recently Indian Farmers Fertilizer Corporation है. Okay, so it is manufacturing nano urea. तो इसने रिसेंटली अपना एक प्लांट भी एस्टेब्लिश किया है कलोल इन गुजरात विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ऑन May 28, 2022. ये जो स्मॉल बॉटल होती है नैनो यूरिया की, ओके, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 500 ml की जो नैनो यूरिया होती है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 150 kg बैग ऑफ ग्रैनुलर यूरिया करंटली यूज बाई फार्मर्स. ओके, now see over here this paragraph. So if we just see that plants को यूरिया क्यों चाहिए होता है, तो यूरिया में होता है नाइट्रोजन. So plants they need nitrogen to make protein and they source almost all of it from soil bacteria which live in plants roots and they have the ability to break down atmospheric nitrogen or from chemicals such as urea into a form usable by plant. ठीक है, प्लांट्स जो हैं जैसा कि आप लोगों ने स्कूल्स में भी पढ़ा होगा, दे डू नॉट यूज नाइट्रोजन, दे यूज नाइट्रोजन इन नाइट्रेट फॉर्म. Fine. So if you will just see that 1 ton of wheat grain, a plant needs 25 kg of nitrogen. For rice it is 20 kg of nitrogen and for maize it is 30 kg of nitrogen. उसके बाद जितना यूरिया हम यूज करते हैं वो सारा प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकता. ओके,
The next is Indian Space Research Organization. It has successfully tested a technology that would be cost-effective recovery of spent rocket stages. Okay, and they will safely land payloads on other planets. This technology is called as inflatable aerodynamic deaccelerator. Okay, so it was designed by ISRO's Vikram Sarabhai Space Center on a Rohini sounding rocket from Thumba Equatorial Rocket Launching System. Fine. So now what is the importance of this technology? So the importance of this technology is कि जो हम स्टेजेस जो हैं जो एक लॉन्च के बाद कि कोई यूज़ का नहीं होता तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं और उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, it opens a gateway for cost-effective spent stage recovery, and this technology can also be used in ISRO's future mission to Venus and Mars. The next is Chile votes on proposed constitution. So if this constitution is approved, it is going to replace Pinochet era constitution and it will shift focus on इंडिजीनियस राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी. चिली के जो प्रेसिडेंट है वो हैं प्रेसिडेंट गैब्रिएल बोरिक, हु इज जस्ट 36 years of age. ओके, सो चिलियंस दे हैव वोटेड इन अ प्लेबिसाइट. ठीक है, प्लेबिसाइट में उन्होंने वोट किया है एंड इफ दिस इज अप्रूव्ड सो देयर विल बी अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, व्हिच कैन चेंज द कैरेक्टर ऑफ द कंट्री ऑल टुगेदर. So it is going to replace the constitution which was imposed by military dictatorship of General Augusto Pinochet 41 years ago. तो 41 ईयर्स एगो के पहले 41 साल के पहले चिली में भी कूप हुआ था. फाइन. एंड जनरल ऑगस्टो पिनोशे ही बिकेम द मिलिट्री रूलर ओवर देयर एंड ही केम विद अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ चिली में अब जो है वो लेफ्ट पार्टी का रूल चलता है. सो नाउ देयर इज अ प्रपोज्ड नाउ देयर विल बी अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द सिटीजन्स. द नेक्स्ट इज अब हमें आज पता चल जाएगा कि कंजर्वेटिव पार्टी से कौन ब्रिटिश का यूके प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है. हमारे पास दो कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं बहुत पहले से. एक है लीज ट्रस, ठीक है, हु वाज अर्लियर फॉरेन सेक्रेटरी, एंड देन फॉर्मर चांसलर ऋषि सुनाक. द नेक्स्ट इज ओबामा विन्स एमी फॉर नरेटिंग डॉक्यूमेंट्री. सो former US President Barack Obama, he has been awarded an Emmy for narrating his Netflix documentary series Our Great National Parks. Okay, so he has already won a pair of Grammy Awards for audio version of his memoir The Audacity of Hope and Dreams from My Father. उसके बाद now यहाँ पे देखिए एक बहुत important term लिखा हुआ है that he now only needs an Oscar and a Tony to complete the estimable EGOT. EGOT का मतलब Emmy, Grammy, Oscar and Tony. ठीक है, so because he has already got Grammy, ठीक, he has already got Grammy, he has already got Emmy, now he just needs Oscar and Tony. तो आज तक सिर्फ 17 लोग ऐसे हैं जिनको ये चारों अवार्ड मिला है. The next is Ukrainian Prime Minister visits Berlin, seeks more weapon. तो यहाँ पे देखिए अगेन न्यूज़ रिलेटेड विद रशिया यूक्रेन क्राइसिस. तो यहाँ पे देखिए इस बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम नहीं आया, इस बार यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम आया. तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट दैट हु इज़ द यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर. सो यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर डेनिस शाइमल, ही ओके, ही हैज़ विजिटेड जर्मनी फॉर गेटिंग मोर वेपन्स. फाइन. और जो जर्मनी के जो चांसलर हैं उनका भी नाम आप देख लीजिए, ओलाफ स्कोल्स. Next from sports, we just have one important news that who has won the Dutch Grand Prix. Okay, so Max Verstappen, he has won the Dutch Grand Prix. Now let's start with explainer deploying 5G in a world built on 4G technology. तो यहाँ पे इस आर्टिकल में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 4G देन 5G. तो यहाँ पे हम एक और भी बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन. लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज 4G वायरलेस नेटवर्क. ओके, दिस 4G वायरलेस नेटवर्क. नाउ दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी क्रूशियल फॉर अलाउइंग कॉल्स थ्रू इंटरनेट. ठीक है ना. 4G ने सबसे बड़ा जो चेंज लाया वो यही लाया कि आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं कॉल्स के लिए. फाइन. अब 4G नेटवर्क के बारे में अगर हम पढ़ें तो
4G नेटवर्क जो है इट हैड अ स्पीड ऑफ 200 to 300 Mbps, मेकिंग पीपल ईजियर टू कनेक्ट एंड टॉक ओवर द इंटरनेट। जो 4G है जो एक स्पेशल टाइप का टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स। So it provides high data transfer and allows multiple users to share a common channel. Fine. तो ये कैसे काम करता है, ये पूरे चैनल को सब कैरियर्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, एंड दिस सब कैरियर्स दे आर स्पेस्ड ऑर्थोगोनली सो दैट दे डोंट इंटरफियर। फाइन, सो इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर मोबाइल टीवी एयर इंटरफेरेंस। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो 4G है ये स्टार्टेड इन 2010, fine, and there has been a ubiquitous growth in it. If you will just see that in last 7 years 6.6 billion are the users of 4G, and it is up from 3.7 billion in 2016. अब हम देखेंगे so we will see that अब बात आ गई है कि पहले तो हम यूज़ करते थे मोबाइल बातों के लिए, वीडियो कॉल के लिए, अब कुछ चीज़ें और ऐड हो रही हैं लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों को ऐड करने के लिए अब 4G से काम नहीं चलेगा, अब हमको 5G पे ट्रांजिशन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज IoT इज गेटिंग इंटीग्रेटेड विद डेली यूज, देन ओवर हियर इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, okay, for productive maintenance and environmental condition monitoring sensors. So here is see that decade old LTE based generation will be ill prepared to handle. So here we have to look for 5G. तो 5G क्या करता है? 5G it ushers a new standard called 5G new radio. फाइन, तो ये जो है LTE का जो है वो बेस्ट कैपेबिलिटी यूज करता है, साथ साथ में इसका एक एडवांटेज भी है, that is 5G NR, it enables increased energy savings for connected devices and enhance connectivity. ओके, इसके अलावा they will use high frequency millimeter wave band that operates on wavelength between 30 GHz and 300 GHz. तो अगर हम देखेंगे 4G LTE जो है उसका वेवलेंथ 6 GHz का है, बट जो 5G का है वो 30 से 300 GHz का है। बट अब देखेंगे कि 5G जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत नया टेक्नोलॉजी है, इट इज़ देयर since 2010, but it has not entered into such a prominence till mid 2020. इसके पीछे जो मेन रीज़न था that was that there were fewer 5G compatible devices in the market compared to 4G ones. Then there was delayed auctioning and rollout of 5G services. Fine. अब जो 5G सर्विस यूज़ करने का तरीका है वो जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं वो दो तरीका है। एक तो होता है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब इसमें 4G का हेल्प नहीं लिया जाएगा, जो 4G का एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वी आर नॉट गोइंग टू सी दिस इज LTE-EPC। EPC का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इवॉल्व्ड पैकेट कोर, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे कि जहाँ पे 4G नेटवर्क का हेल्प लिया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो LTE-EPC है, फाइन, इसी को यूज़ करके 5G नेटवर्क को दिया जाएगा, ठीक। बट जो स्टैंड अलोन है यहाँ पे 5G के कोर सिस्टम्स होंगे दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड 5G नेटवर्क सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल if you will just see Germany, so it used NSA, that is non stand alone model to roll out 5G services in 2019. फाइन, तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें चल रही है, स्टैंड अलोन एंड नॉन स्टैंड अलोन। तो अभी तक नॉन स्टैंड अलोन पॉपुलर रहा है क्योंकि इसका एडवांटेज क्या है कि आपने जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसी के बेसिस पे आप 5G नेटवर्क को रोल आउट कर सकते हो। तो जो स्टार्टिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है रोल आउट करने के लिए वो कम आता है। स्टैंड अलोन में आपको पूरा 5G का अलग से पूरा नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। फाइन, सो इफ यू विल सी that in this case RAN and core are completely new and there will be clear separation of different network functions in line with 3GPP recommendation. तो अगर आप इंडिया में देखेंगे so Reliance Industries Limited, okay, which plans to expand this 5G connect to every town in India by end of 2023. It is going to use stand alone architecture. अगर आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था कि जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी था वो रिलायंस ने लिया है और रिलायंस ने इसको इसीलिए लिया है फॉर स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर। द नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद
श्रीलंका। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इट हैज़ अनाउंस्ड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, मतलब स्टाफ लेवल पे एग्रीड हुआ है, वेयर इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड श्रीलंकन अथॉरिटीज विद $2.9 बिलियन पैकेज विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट श्रीलंका's इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर 48 month अरेंजमेंट। ये सारा अरेंजमेंट हैज़ बीन डन अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। नाउ what Sri Lanka has to do on its part? So Sri Lanka, it has to take a series of measures, such as it has to fix fiscal lapses and structural weakness in its economy, such as it has to raise fiscal revenue, it has to safeguard its financial stability, it has to reduce corruption. Fine. उसके साथ साथ श्रीलंका will restructure its debt. जो श्रीलंका का जो total debt है, that is $51 billion. So if you will remember the news that in April Sri Lanka declared a preemptive debt of $51 billion. तो इसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। रिस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अब जो भी लैंडर्स हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा और एक टाइमलाइन बनाना पड़ेगा कि दैट हाउ श्रीलंका इज प्लानिंग टू रीपे इट्स डेट। जब ये क्रेडिटर्स जो हैं, जब ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को अप्रूव कर देंगे, ठीक है ना, देन ओनली श्रीलंका विल गेट हेल्प फ्रॉम IMF. So IMF has said that it will provide support to Sri Lanka only after country's official creditors give financing assurances on debt sustainability. कि उनको assurance देना पड़ेगा कि that how they are going to help Sri Lanka to overcome this crisis and how they will restructure the debt. तो इसको लेके जो श्रीलंका है, it is already negotiating with international sovereign bond holders. तो जो श्रीलंका का जो about maximum जो debt है, it is being held by international sovereign bond holders. Along with that, Sri Lanka is also talking with other countries like China, Japan and India. ठीक, अब देखिए चाइना ने क्या क्या बोला है। तो चाइना, it is willing to lend more money to the country, but it has put the onus of restructuring past debt on Sri Lanka. मतलब चाइना पैसा देने को तैयार है, बट जो पहले से जो चाइना ने श्रीलंका ने कर्जा ले रखा है चाइना से, वो कह रहा है कि उसको रिस्ट्रक्चर करने का जो जिम्मेदारी है वो श्रीलंका के ऊपर है। Japan is agreed to work with Sri Lanka and other creditors, but has said that it is important for Sri Lanka to work in collaboration with IMF and Paris Club. Paris Club क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, that is called as Paris Club. New Delhi is saying that yes, they are also there to help Sri Lanka, but Sri Lanka should treat all its creditors equitably and transparency. Right? एक किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद द नेक्स्ट मूड क्वेश्चन इज कि क्या $2.9 बिलियन का बेल आउट पैकेज श्रीलंका के इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि श्रीलंका जो है वो अभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के थ्रू जा रहा है, ओके, इवन इट दे हैव रिस्ट्रिक्टेड देयर इंपोर्ट बट देयर एक्सपोर्ट इज नॉट वाइडनिंग, क्योंकि जो उनका एक्सपोर्ट बास्केट है इट जस्ट कंसिस्ट ऑफ टी, गारमेंट्स एंड स्पाइसेस। उसके बाद जो people they are suffering because of rising inflation which has went up to 64.3% and food inflation has almost doubled, that is 93.7%. उसके बाद the World Food Program is saying that 30% of Sri Lanka's population became food insecure since the crisis has worsened. Okay, now if the IMF package it comes quickly to Sri Lanka, तो जो श्रीलंका का जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बढ़ जाएगा एंड द गवर्नमेंट जो है वो इट कैन स्टार्ट बोरोइंग वंस अगेन फ्रॉम प्राइवेट क्रेडिटर्स, मल्टी लैंडर्स एंड बायलैटरल पार्टनर्स। नेक्स्ट कमिंग टू द एडिटोरियल, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड इक्वेशन। तो रिसेंटली हम जानते हैं कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू फ्लड। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि दैट दे आर लुकिंग टू रिवाइव ट्रेड विद इंडिया। तो 2019 में इंडिया एंड पाकिस्तान दे टुक सीवियर मेजर्स टू कर्ब देयर ट्रेड बिटवीन देम। सो बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप हो रही थी, लाइक अटैक इन पुलवामा, क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स, डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, दिस वर द मेजर रीजंस फॉर दिस। बट पाकिस्तान जो है वो अभी करंटली फ्लड से जा रहा है, देयर इज़ अ फूड शॉर्टेज। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, ही हैज सेड दैट हिज गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू इम्पोर्ट, देखिए ज़्यादा नहीं, वेजिटेबल्स एंड ऑडिबल आइटम्स फ्रॉम इंडिया। अब हम देखेंगे कि डाटा बताता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट था फॉर मीट, कॉटन, वीट एंड सीरियल फ्लोर इंपोर्ट्स, बट सिंस पाकिस्तान हैज इंपोर्ट कर्ब्स ऑन इंडिया इन 2019, सो इंडिया शेयर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय चाइना, US एंड ब्राजील। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू अ editorial which is the most important editorial for today,
दैट इज अ लॉट इज एट स्टेक फॉर इंडिया बांग्लादेश टाइज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सी हियर this is the first point, that is following the conclusion of the 7th round of India Bangladesh Joint Consultative Commission in June, the two neighbors have expanded their partnership to include artificial intelligence, fintech, cybersecurity, startups and connectivity. The second thing is that both the countries, they are going to discuss comprehensive economic partnership agreement. Fine. Third point is, what is the importance of KEPA? So see, KEPA, that is Comprehensive Economic Partnership Agreement, it comes at a time when Bangladesh is set to lose the duty free and quota free market access facility to India after 2026. मतलब 2026 के बाद बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज नहीं माना जाएगा, उसको डेवलपिंग कंट्री माना जाएगा। जैसे ही ये स्टेटस चेंज होगा तो बांग्लादेश will lose its duty free and quota free market access. So that's why Bangladesh is planning to have a comprehensive economic partnership agreement with India. Now, what is the trade relation between Bangladesh and India? So Bangladesh, it is India's 6th largest trading partner, and if you will see that Bangladesh, it also imports critical industrial raw material from India, fine, so on which its exports are reliant. अगर ये डील हो जाती है तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है, इट कैन राइज बाय 182% एंड इट कैन ऑल्सो गो टू 300%। उसके बाद द नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी। सो बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड एशियान। सो इफ इंडिया एंड बांग्लादेश इफ दे वर्क ऑन कनेक्टिविटी, तो इंडिया का जो इंटीग्रेशन है विद नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड विद एशियन रीजन, इट विल ग्रो एंड इट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। So that's why Bangladesh is also expressing its interest to join India-Myanmar-Thailand highway project. Fine. So India Bangladesh का जो है वो bilateral waterway trade, it will also get boosted because now India has got the access to 2 ports in Bangladesh, that is Mongla and Chittagong. Then इंडिया जो है वो बांग्लादेश को कह रहा है कि टू डाइवर्स इज एक्सपोर्ट्स थ्रू इंडियन पोर्ट्स, वो इंडियन पोर्ट्स का यूज़ करे इंस्टेड ऑफ मलेशियन और सिंगापुर पोर्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 3 एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं, इंटरनेशनल बस सर्विस भी चलती है। बट जो एक थॉर्नी इशू रहा है इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में, वो है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जो है वो दोनों के एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अभी तक इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। फाइन। उसके बाद 2015 में इंडिया और बांग्लादेश ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, एंड there was also a security review in Assam, Meghalaya, Bangladesh Tri Junction, which is called as smuggler route. उसके बाद अब हम आते हैं रीजनल पॉलिटिक्स पे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो चाइना के आसपास घूम रहा है। तो चाइना इज ऑल्सो मेकिंग इट्स इनरोड इन बांग्लादेश। सो बांग्लादेश हैज़ अप्रोच्ड चाइना फॉर मेगा प्रोजेक्ट टू एनहांस तीस्ता रिवर वाटर फ्लो। Then Bangladesh also requires China's support in resolving the Rohingya refugee crisis. Second is Bangladesh is the second biggest arm market for China and Pakistan. The third is Bangladesh is also warming up to having a good relation with Pakistan. Now एक ऐसा ही मिलता जुलता आर्टिकल अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी आया है, that is called as ट्रैक 1.5 डायलॉग। तो डिप्लोमेसी में एक होता है ट्रैक 1 डायलॉग which happens between government and government. Track 2 dialogue which happens only between civil societies, NGOs, people's representative etc. Track 1.5 मतलब दोनों का मिक्स, ठीक है, that is called as track 1.5. फाइन। सो इफ़ यू विल जस्ट सी ओवर हियर, तो इफ़ अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा वो है, क्या कहते हैं, फोकस, वो ट्रेड है, देन सिक्योरिटी है, और तीसरा है इंडो पैसिफिक रीजन। जैसे ही मैंने इंडो पैसिफिक रीजन बोला, आप इसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये चाइना होगा ही होगा इसके अंदर। फाइन। सो ट्रेड, सो दे आर बोथ नेगोशिएटिंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट विच विल बी अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फाइन। then over here there is also a talk of Australia India leadership dialogue to expand the relationship in other domains also. The next is about
इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है ना। सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इट वांट्स अल्टरनेटिव मार्केट टू चाइना एंड डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन फॉर इट्स क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है ना। सो ऑस्ट्रेलिया हैज रिजर्व्स ऑफ 21 आउट ऑफ 49 मिनरल्स आइडेंटिफाइड इन इंडियाज क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी। So Australia is well placed to serve India's national interest required for carbon reduction program, ठीक है। So those are all the important news from today's Hindu analysis. We will meet tomorrow again. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.